Hello. So, I welcome to all of you. Today's topic is double fertilization in sexual fertilization of flowering plant. So, what is the meaning of double fertilization and where it does take place? Okay. So, meaning of double fertilization means double. It means two type. First one, it is a syngamy. And second one, it is triple fusion. Okay, double means type. How many type? Two type. First one, it is syngamy process, and second one, it is triple fusion. And fertilization means what? Fertilization means it is a process of fusion. Fusion between male and female gamete. Okay, double fertilization. Double means two type of fertilization. First one, it is syngamy process. Second one, it is triple fusion. And what is the meaning of fertilization? The fertilization means fusion. Fusion of male gamete and female gamete. Means fusion between male and female gamete. Now, where it does take place? So here, the double fertilization it takes place in the ovary part, means female reproductive part, ovary and ovule region. Okay, so first of all, the pollen grain. Okay, ovary it decide, it choose its suitable pollen grain, and after choosing of pollen grain, it will enter into ovarian part. So how it will choose the pollen grain? So here it is a female reproductive part, pistil. Okay. Now on stigma region, there are one or two or more than that. A projection are present. Small projections are present. It is called as a zumpore. It is a small projection. Now, through zumpore, here our suitable pollen grain. Okay, here it is a pollen grain. Now, how the pistil it choose its suitable pollen grain? So, pollen grain and stigma it interact with each other. Means pollen pistil इंट्रैक्शन के थ्रू ये पिस्टिल चूज करती है सुटेबल पोलन को. अब मान लो कि ये हमारे सुटेबल पोलन है. अब ये सुटेबल पोलन के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? तो टू टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होंगे. एक वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट होगा, एक जनरेटिव सेल प्रेजेंट होंगे. ठीक है, जनरेटिव सेल कितने हो जाएंगे? दो सेल हो जाएंगे. यानी कि ये पोलन ग्रेन क्या करेगी? तो वो पोलन ट्यूब जनरेट करेगी और जम्पोर के थ्रू पोलन ग्रेन जम्पोर के थ्रू मेल गैमेटोसाइट को, मेल गैमेट को वो क्या करती है? ट्रांसफर करती है स्टाइल के थ्रू. कहां पर? तो ओवरियन रीजन के अंदर. सो हाउ इट विल बी एंटर इनटू ओवरियन पार्ट? तो here the pollen tube it enter into ovarian part. Okay,
So here it is a male gamete, second male gamete, first male gamete and second male gamete. It is a haploid form. Okay, haploid form means n number. अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं ओवरियन पार्ट का, ओवरी का, तो ओवरी के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है? ओव्यूल. अब ये ओव्यूल कैसे जनरेट होता है, ओव्यूल कैसे बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो यहाँ पर 8 टाइप के क्या प्रेजेंट होते हैं? तो हैप्लॉइड न्यूक्लिएटेड सेल प्रेजेंट होता है. ये 8 टाइप ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लिएटेड सेल कहाँ पे और किस तरह से अरेंज होते हैं? 3 nucleated cell are present at the causal part यहाँ पे. ओके, 3 nucleated cell जो हो गए, 3 nucleated cell, जिसको हम क्या नाम देते हैं? एंटीपोडल सेल. ओके, तो causal रीजन पर एंटीपोडल सेल, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या प्रेजेंट है? माइक्रोपाइलर पार्ट. माइक्रोपाइलर पार्ट पर वहां पर जब पोलन ट्यूब को अंदर की तरफ एंट्री करनी है ना, ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर, तो वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल माइक्रो प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं. ये प्रोजेक्शन के थ्रू, जो प्रोजेक्शन होते हैं, वो प्रोजेक्शन के थ्रू ये हमारी पोलन ट्यूब जो है, वो पोलन ट्यूब अंदर की तरफ क्या करेगी? एंट्री करेगी. तो यहाँ पर जो स्मॉल प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं फिलिफॉर्म एपर्टस. तो फिलिफॉर्म एपर्टस के थ्रू पोलन ट्यूब अंदर की तरफ क्या करेगी? एंट्री करेगी. ठीक है. नाउ यहाँ पे ये एंटीपोडल सेल के ऑपोजिट पार्ट पर क्या प्रेजेंट हो गए? तो 3 सेल, जिसमें से 2 सेल क्या होते हैं? सिनर्जिक सेल 1 and 2, एंड थर्ड सेल इट इज अ egg cell. Okay, it is also a haploid cell. Now सेंटर रीजन, सेंटर में 2 न्यूक्लिएटेड सेल प्रेजेंट होते हैं. ये 2 न्यूक्लिएटेड सेल को हम क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई. इट इज आल्सो हैप्लॉइड फॉर्म. So here total 8 number of cells are present and all the 8 nucleotide cells are haploid in nature. So here how pollen tube enter into pollen ovary. तो यहाँ पे पोलन ट्यूब क्या करेगी? तो फिलिफॉर्म एपर्टस के थ्रू ये अंदर की तरफ क्या कर रही है? एंटर होती है. ओके, नाउ यहां पर हमारा एक मेल गैमेट, ठीक है, अंदर की तरफ क्या करेगा? एंट्री करेगा. एंट्री करके वो कहां पे आता है? तो एंटर करके वो एक पोलन मेल गैमेट जो है वो आएगा किसके पास? तो वो आएगा एग सेल के पास. यानी कि ये हमारा मेल गैमेट, हैप्लॉइड मेल गैमेट. ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये किसके साथ फ्यूज होगा? तो एग सेल के साथ फ्यूजन करेगा. यानी कि यहां पर एग सेल और मेल गैमेट, ये दोनों के बीच में क्या होगी? फ्यूजन प्रोसेस. और फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू यहां पर क्या जनरेट होगा? तो फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू यहां पर डेवलप होगा क्या? तो वहां पर डेवलप होता है यहां पर क्या डेवलप होगा? तो इट विल प्रोड्यूस जाइगोट. Okay, and the zygote is diploid form, means 2n. Okay, now zygote after development it will form embryo. Okay, तो फर्स्ट फ्यूजन कहां पर हुआ? तो फर्स्ट फ्यूजन यहां पर एग सेल के पास. एग सेल कैसा है? हैप्लॉइड. मेल गैमेट कैसा है? हैप्लॉइड. ये दोनों जब कंबाइन हो गए, दोनों जब फर्टिलाइज हो गए, तब वहां पर क्या जनरेट होगा? जाइगोट प्रोड्यूस होगा. ये जाइगोट कैसा होगा? 2n नंबर में. नाउ जाइगोट इट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, and here embryo it also a diploid in nature. Now first fertilization here completed. It is called as a syngamy process. Okay, syngamy process के थ्रू क्या जनरेट होगा? एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा.
तो यहाँ पर एक फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ। सेकंड फर्टिलाइजेशन मेथड ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू। अब यहाँ पर हमारा सेकंड मेल गैमेट, ये सेकंड मेल गैमेट पोलन ट्यूब के थ्रू कहां पर एंट्री करेगा, तो वो एंट्री करके आएगा ये पोलर न्यूक्लियाई रीजन के अंदर। यानी कि यहाँ पे हम समझ लो कि ये हमारा पोलर न्यूक्लियाई रीजन, और उसके साथ क्या बाइंड हो जाएगा, मेल गैमेट। ओके, नाउ before male gamete are fused with polar nuclei, here two polar nuclei combine with each other, fuse with each other, and it will form a secondary nucleus. And after secondary nucleus production, the male gamete are fused with second nucleus, and it will form a triple nucleated cell. It is called as a PEN, primary endospore nucleus. Okay, and here primary endospore nucleus, it is a triploid form. That's why we call it as a triple fusion. Okay, now primary endospore nucleus is developed and it will form endospore. Okay, and here endospore, it is a triple endospore, it is a triploid form. Now what is the function of endospore? एंडोस्पोर वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, तो एंडोस्पोर के अंदर वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, तो फूड स्टोर होता है। अब यह जो फूड है, ये फूड कहां पे यूटिलाइज होगा, तो फूड इट यूटिलाइजेशन इनटू एम्ब्रियो डेवलपमेंट। मींस during embryo development, the storing amount of food is present into endospore, and endospore it utilizes their food into embryo development. Okay, now first process, it is a syngamy process. syngamy process के थ्रू क्या जनरेट होगा, जाइगोट। जाइगोट किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होगा। एंड सेकंड प्रोसेस हमारी होती है क्या, ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू क्या होगा, तो वहां पर ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू पोलर न्यूक्लियाई कंबाइन होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगे। सेकेंडरी न्यूक्लियस किसके साथ कंबाइन होगा, मेल गैमेट के साथ कंबाइन होगा, और ये मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियाई एक फ्यूज विद ईच अदर एंड इट विल फॉर्म primary endosspore nucleus. Primary endosspore nucleus is developed into endospore, and endospore it is a triplet form, यानी कि triploid form, and your embryo it is in a diploid form. Okay, so double fertilization is completed. So I hope you understand very well. Thank you so much.